मान ली भाई, मान ली, आपने बनवाई है। सिमाबिया इसके बाद 163 ले लीजिएगा। जीत रही होगी, एक कॉर्नर छोड़ दी, कॉर्नर पकड़िएगा उधर से। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज, थोड़ा सा डिसिप्लिन। जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English, so that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the form 45 that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in the thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them.
This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m. I was ousted from the RO's office. There is a video of that is where I will play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was ridiculous. They could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore, in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results for the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be
the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a synth party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA1 to 8 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसने हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Imam Bhai. Now next, यहाँ मेरी रिक्वेस्ट अपनी है बहन अलीमा आबा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है। और बहन को सलाम पेश करता हूँ। Assalamualaikum ji. खामोशी, खामोशी। Please, Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त बाहर से बोलेगा, पीछे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा तो बाहर निकालो, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी। अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA58? NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many thought, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original form 45. मेरे हल्के में
456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labak got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the court until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the court with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger pass than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Sharafzal bhai. Thank you so much, Ayazmir sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी माँ मिल्लत की जगह है, और खामोशी से लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी. घर की चार दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करेगी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ गए. मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी. दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था. मैं दर्स देती थी. मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी. खौफ मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे
लड़े बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तलक नहीं था तो मेरे पास जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माली के फर्क 350 ये माली ये रिहाना डाल साहब के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माली के, वो 445 है। चैलेंज करते ख्वाजा आसिफ को इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 445 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के ताज आ रही थी, बाहर से भी सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया और बस से उठा कर ली गई। मैं उसी वक्त जब सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर के साथ, मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ, आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर अंदर गिर। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के वो असल इकबाल डीपीओ और आर इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जब को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिना सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी, अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो दस्का की बेटी थी और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहे
तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है, मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिर एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट विकेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके, और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम जी अब हम Now I would like to request Forum Chair Zaman और स्पीच की है रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं आएंगे। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सब कुछ ऐसे अभी चांस नहीं सब मिल रहे हैं। फोरम शेर जमान और रविस्तान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे नाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाजन 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो है वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट कराची के अनाउंस हो नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजार के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम जमाना जो सियासी जमात एमक्यूएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे थी, टीएलपी चौथे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए?
उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300 NS 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी जी आई नो जी। सो NS 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000 मेरा रिजल्ट, क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची, कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MKM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3278 वोट थे, उनके 47 में 7000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ की है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरब इस्लाम थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में आप शेखुराबाद साहब बात करेंगे, नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर्रहमान और मैं कराची में 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के MA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये 95 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल के जो कैंडिडेट है मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मबनी है तो मैं अपनी हाथ भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया और कराची NA 235 से बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। और
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरोप को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक एक्सी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया किसको वोट दो। और भाई तुम तो भारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, मेरी बारी आपने साथ तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी मैं मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN 79,616 और मैं 65,503 मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है, वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और फलक सोहेब जो कि नूर लीग का था। फलक सोहेब तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब ने 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे केस किए हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बाकी है ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों पे आगे से बंदे हटे तीनों। ये असेंबली के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों असेंबलीज खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड पे बंदे खड़े उनको उठाएं। सब लोग हटे वहां से, हटे वहां से सारे। शाबाश, जल्दी हटे। बिस्मिल्लाह नजर आ रही, बिस्मिल्लाह खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग, हेलो नीचे उतरो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह आपका हेलो 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 बस रजा खत्म हो गया टाइम। हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो 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 चले आपका आवाज आ रहा है करो इस तो कर लो। हेलो नहीं आप वैसे हेलो हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें। ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा NA163 जनूबी पंजाब बहावलनगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब ने मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कोर्ट के सामने कहा था अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल हो। नबी और जो इदारों में लोग बैठे हैं, अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हक कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए जीटी रोड में आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए 8 दिन मेरे पास थे। वल्लाह खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की।
हमारे लोग वहाँ पे रहे, डीपीओ भागवत आया, उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को मौत से देखने में 48 घंटे 10,000 उन्होंने डीपीओ बहावल नगर में पुलिस के साथ रेंजर्स के साथ वहाँ से चुनाव में दौड़ हायर किया और इन्होंने जो जीत थी यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ और से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710 दूसरे नंबर पे एक टेस्ट में क्यों कह रहा हूँ, नूर लीग का नूर रशीद तनवीर उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822। अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसरा जो इमरान खान का सिपाही है 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नूनी को अभी गायब हो गया जो दूसरा। अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नूनी वाला भी और शौकत बसरा भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टेडियम में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आदो किया वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आकर के उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ, जब जैसे मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना सुनने वाली बात है, मैंने वहां पर पुराने पाप पे हाथ रखकर बात की है। मैं क्या जैसा आपके दादा से इंसाफ चाहिए आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब में इमरान खान का सिपाही होता है, मैं हल्के वालों को ये वोट इमरान खान की इमारत है, ये मेरे हल्के वालों की इमारत है। आखिरी सांस तक मुझे बनाए और इजाजुल हक को बनाए। अगर इजाजुल हक फॉर्म 45 दिखा दे सबको मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, दो नहीं क्या सबको प्लीज डेकोरम का ख्याल रखें। थोड़ा सा स्पीकर किसी के स्पीकर को नहीं बुलाया, शेख फरीद को इनवाइट करते हैं। इनवाइटिंग शेख फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, Sheikh Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is communicating on his Iran of Aniq Makam, who was formerly advised to the Prime Minister Shahbaz Sharif. He maneuvered winning and he will explain to how his mandate was stolen. लोकल रहेगी, गोरे चलेंगे लोकल में नहीं बैठ सकते यूट्यूब पर इसका आया इसके नजदीक कर दिया। इधर आ शॉर्ट सी बात करें, नमाज की नहीं कर रहे सही तरह मतलब जी हैदराबाद में बोले नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इस तरह मौका दिया। हमारा 40,000 लिया मेरा इसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया अगर ये समझे कि ये उसको जितवाया और लोगों ने जब एहतजाज किया उसके ऊपर सवाल की गई उसके बाद हमारे पास आपका रिजर्व है एक साइड से बयान हमारे पास मौजूद है। हमारा जो आदमी शहीद हो गए और 18 हमारा जख्मी है और उसमें 12
माइक किधर है? अली माइक किधर है? मेरे पास. Said Fareed messages that two of his relatives were gunned down when he protested. 18 of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Amir Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Said Fareed साहब. गोरे चले गए थे. आप जाए बस दो स्पीच करते हैं. अच्छा, this is a copy of the FIR and these are Spot 45 declaring an unequivocal winner of this constituency. वोट कमेटी की मीटिंग भी थी यार. Kindly stop doing minute बात करें, इससे ज़्यादा नहीं. Please. 50 मिनट की अस्सलाम वालेकुम. मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है. 219 से मैं कैंडिडेट हूँ. सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त दूंगा. तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे. हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे. 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया. हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को जख्मी एमके ने किया, 1 आदमी को शहीद किया. अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया. हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ. NA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए. इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए. असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ. इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, मगर किसी इदारे ने इन चोरों डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया. वो जीत कर आके मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया, हमें इलेक्शन हराया, अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दें. और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं बनवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे. अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान. Excuse me. Mustafa, educate candidate. He will speak. मैं अपने प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ. मैं हल्का 171 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ. परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर IPP, otherwise my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही है. ये उनको जितवाना चाहती है और चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो. तो आप हजरात इसका नोटिस लें. एजेंसीज इसमें पूरी क्या कर रहे हैं यार, ये किस लिए लगवाया हुआ है? Thank you so much. अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मिस हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को. अगर सालार काफी यहाँ मौजूद है या अफवार काफी, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें. थैंक यू. स्टार्ट करवाई, क्या कर रहे हैं आप? कोई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है यार. हमारी तो सारा दिन चलती है. सारे 110 पोलिंग केंद्र के पास कंप्लीट रिजल्ट है. इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ. लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया. मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया. बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चलूं, बुनेर से
पुणे से डॉक्टर रिजवान, वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए, जिनके स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कोली सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट मेहमूद खान अचिकदाई के हाथ में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 किए गए, ये दान दिए। हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाअल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से खुसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। थैंक यू। प्लीज एक ऊपर एक नीचे से करें यार, ये काइंडली खाली अब साल पहाड़ मुझे टाइम है, यही का टाइम वन बाय वन चले। बहुत रिक्वेस्ट है सिमाविया आपसे, एक टॉप से और एक बॉटम से इस तरह चलाएं, वाइस के साथ चलाएं प्लीज। एनए 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। सही है, ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। मैं तो कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम शक्ति एनए 51 मरी कोतरी कोहटा और कदर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब में मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी 24,000